जी गुड मॉर्निंग बेटा। अपना फर्स्ट यूनिट द थर्ड चैप्टर है गॉस थ्योरम। ਉਹਦਾ ਪਹਿला टॉपिक है दैट इज़ 3.01 टॉपिक है बेटा एरिया वैक्टर आ मैथमैटिकल नोट। देखो ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਏਰੀਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ दैट इज़ मैगनीट्यूड। बट ਉਹਦੀ डायरेक्शन ओरिएंटेशन भी इंपॉर्टेंट है बट इट्स ओरिएंटेशन इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। देखो ओरिएंटेशन का की मतलब है एरिया वैक्टर की ओरिएंटेशन आप इत्थे एक एग्जांपल के नाल समझते हैं। कोई स्ट्रीम फ्लो है वाटर फ्लो कर रहा आप एक अपने को एक रिंग है आप रिंग नूं की कीता स्ट्रीम फ्लो दे विच रखिया किस तरीके नाल रखिया। पहला तो देखो बेटा आप अपनी वाटर इस तरीके नाल फ्लो कर रहे आप अपनी रिंग नूं इस तरीके नाल रखिया दैट मीनस परपेंडिकुलर टू द वाटर फ्लो प्लेन दे परपेंडिकुलर रखिया तो देखो उस रिंग दे विचों कितना वाटर फ्लो करेगा जिन्ना उस रिंग दा एरिया उन्ना ही वाटर फ्लो करेगा। जदों आपां परपेंडिकुलर रखिया इस तरीके नाल रिंग नूं रखिया रिंग विचों खुली है तो रिंग दे विचों वाटर फ्लो करेगा। हुण की कीता आपां अपनी रिंग नूं इस तरीके नाल रखदा पैरलर रखदा वाटर इस तरीके नाल फ्लो कर रहा आपां अपनी रिंग नूं इदां रखदा तो इस रिंग दे विचों तां वाटर फ्लो नहीं करेगा। क्लीयर है। जदों आपां रिंग नूं परपेंडिकुलर रखिया उस टाइम ते मैक्सीमम वाटर फ्लो थ्रू इट। जदों रिंग नूं पैरलर रखिया उहदे विच वाटर नहीं फ्लो करेगा दैट मीनस मिनीमम वाटर फ्लो थ्रू इट। गॉट इट। सो ਇਹਦਾ मतलब ਇੱਥੇ ਏਰੀਏ ਨੇ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੀਟ ਕੀਤਾ। ਦ ਏਰੀਆ ਆਫ ਰਿੰਗ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਟਰੀਟਡ ਐਜ਼ ਵੈਕਟਰ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਆ ਕਿ ਏਰੀਆ ਵੈਕਟਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਲੇਨ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੁੰਦਾ। Obviously, the direction of area vector should be along normal to the plane of area. Normal means perpendicular. देखो आ तुहाडे कोले कोई भी एरिया ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਵੈਕਟਰ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਬੇਟਾ ਇਹਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਖੋ ਏਰੀਆ ਮਤਲਬ ਆ ਪਲੇਨ ਪਿਆ ਏਰੀਆ ਵੈਕਟਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੋਏਗਾ। ਗਾਟ ਇਟ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਏਰੀਆ ਵੈਕਟਰ। ਸਪੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਡੀਐਸ ਏਰੀਆ ਇਹਨੂੰ ਵੈਕਟਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਏਰੀਆ ਵੈਕਟਰ ਕੱਢਣਾ ਤਾਂ ਏਰੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੈਕਟਰ ਪਤਾ ਵੈਕਟਰ contributes both magnitude and direction. ds is magnitude of area and its direction is here and denotes normal. Normal means to say perpendicular and unit vector denotes direction. So vector contributes both magnitude and direction and stands for normal. Normal means perpendicular. दैट इज़ योर 3.01 टॉपिक। ये बेटा इस तरीके नाल डायरैक्ट इदां पेपर दे विच नहीं आउंदा। एरिया वैक्टर की टर्म बहुत जगह ते यूज़ होएगी तुसीं ये चीज़ माइंड रखनी है। एरिया वैक्टर इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ एरिया। एरिया वैक्टर इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ एरिया। दैट इज़ योर 3.101 टॉपिक। नेक्स्ट 3.02 टॉपिक electric flux. Electric flux it is denoted by phi. देखो पहला एक मतलब समझ लो डेफिनेशन ते ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ इलेक्ट्रिक फील्ड ले ली कोई भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है उस इलेक्ट्रिक फील्ड ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਏਰੀਆ ਰੱਖਦਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। उस यूनीफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਏਰੀਆ ਰੱਖਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਾਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫਲਕਸ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ ਬੋਲੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਕਸਿਮਮ ਫਲੋ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਏਰੀਆ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੌਰੀ ਫੀਲਡ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਏਰੀਆ ਰੱਖਿਆ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਾਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਆ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਦੈਟ ਹੈਂਡ ਸ਼ੋਜ਼ ਅਵਰ ਏਰੀਆ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਾਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਾਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨ ਇਜ਼ ਨਾਰਮਲ ਟੂ ਦਾ ਏਰੀਆ। ਗਾਟ ਇਟ।
ਕਿ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਾਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਲੋਂਗ ਇਟਸ ਨਾਰਮਲ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਫਲਕਸ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫਲਕਸ ਥਰੂ ਅ ਸਰਫੇਸ ਹੈਲਡ, ਉਹ ਸਰਫੇਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ 'ਚ ਪਿਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫਲਕਸ ਥਰੂ ਅ ਸਰਫੇਸ ਹੈਲਡ ਇਨਸਾਈਡ ਐਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ crossing the surface in the normal to the surface। clear है? electric flux is a scalar quantity। ठीक है, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਟ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਾਂ ਲੰਘ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ 5। ਡਾਇਰੈਕਟ 5 ਨਹੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਏਰੀਆ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ds। we consider small area element ds। The elementary area ds can be represented by ds vector। देखो ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਏਰੀਆ ਵੈਕਟਰ ਕਿਤੋਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀਏ ਆਪਾਂ, ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਏਰੀਆ ਵੈਕਟਰ ਕਿਦੋਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, which is directed along normal to the, ਇਸ ds ਏਰੀਆ ਦਾ ਏਰੀਆ ਵੈਕਟਰ ਆਊਗਾ। देखो आ तुहाडे कोले कोई भी एरिया पिया, इत्थे एरिया पिया, एरिया वैक्टर दे परपेंडिकुलर होएगा, आ इहदा परपेंडिकुलर आ, दैट मीनस ये तुहाडे कोले ds वैक्टर है। ये जिहड़ा अपनी मेन इलैक्ट्रिक फील्ड दे नाल थीटा एंगल बना रहा, इधरली डायरैक्शन च इलैक्ट्रिक फील्ड लग रही है, जिहड़ा एरिया वैक्टर आ अपनी इलैक्ट्रिक फील्ड दे नाल किहड़ा एंगल बना रहा, थीटा एंगल बना रहा। सो आप इलैक्ट, हुण देखो एक चीज़ आ, आप लूप वाले आर्टिकल च एक चीज़ कीती सी बेटा कि जिहड़ी लाइन दे नाल एंगल बनदा हुंदा, जिस लाइन दे नाल बेटा एंगल बनदा हुंदा, दैट इज़ अवर कॉस कंपोनेंट। ओके, जिस लाइन नाल थीटा एंगल बन रहा, दैट इज़ अवर कॉस कंपोनेंट। सो हुण इलैक्ट्रिक फील्ड नूं किद्दां लिखांगे, En is equal to E cos theta। क्लीयर है ना? En क्यों लिखिया आपां, क्योंकि इस फील्ड दे विच जिहड़ा एरिया सीगा एरिया वैक्टर आपां किहड़ा लैंदे हुंदे आ, नॉर्मल। सो इत्थे E cos theta क्यों लिखिया, क्योंकि आपां इलैक्ट्रिक फील्ड दा कंपोनेंट लैना, आप इस एरिया वैक्टर ने अपनी फील्ड नाल थीटा एंगल बनाया, जिस लाइन दे नाल थीटा एंगल बनदा हुंदा, दैट इज़ ऑलवेज अवर कॉस कंपोनेंट। सो En इज इक्वल टू E cos थीटा। हुण फ्लक्स किहदे इक्वल हुंदा, आपां फ्लक्स नूं डी फाई क्यों लिखिया, क्योंकि एरिया स्मॉल सी, जे स्मॉल एरिया दैन फ्लक्स भी स्मॉल होएगी। फ्लक्स किहदे इक्वल हुंदी है बेटे, इलैक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया, कि किन्नी फील्ड लाइन्स किन्ने एरिए चों क्रॉस कर रही है। फ्लक्स का आपां ही मतलब लिया सी ना कि इस एरिए दे विचों किन्नियां फील्ड लाइनां क्रॉस करनियां है। सो फ्लक्स किहदे इक्वल हुंदी है वैसे, इलैक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया। हुण बेटा इलैक्ट्रिक फील्ड किन्नी है, E cos theta इंटू एरिया, that is our small component, d phi is equal to E ds cos theta। जे बेटा इनू आपां वैक्टर फॉर्म दे विच लिखना होवे, फाई दे उत्ते वैक्टर नहीं पाउणा, आपां पहले ही गल कीती है कि फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, इलैक्ट्रिक फ्लक्स इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। सो इनू जे आपां वैक्टर फॉर्म च लिखना होवे, ये भी आपां गल कीती सीगी कि कॉस थीटा नू हटा के वैक्टर फॉर्म दे विच किहड़ा प्रोडक्ट आउंदा, डॉट। साइन थीटा नू हटा के आउंदा बेटे क्रॉस प्रोडक्ट, ते कॉस थीटा नू कन्वर्ट करके आउंदा डॉट प्रोडक्ट। हुण फिर उस पॉइंट ते आ जाओ, स्मॉल एरिया दी इन्नी फ्लक्स आ गई, वी हैव टू फाइंड द फ्लक्स ऑफ दिस होल एरिया। इहदे लई आपां दोनों साइड की कर देंगे, इंटीग्रेट, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कैंसल। सो फाई इज इक्वल टू E dot ds। clear? That is the flux of our whole area। that is your 3.02 topic। इस टॉपिक नू क्लीयर करो, दैन आप अपने 3.03 आर्टिकल ते आवांगे, that is Gauss theorem। good luck।